Hey everyone, thank you so much for being connected to us for the last few days. I told all of you that okay, School of Human Intelligence as a topic is very close to my heart, and I wanted to today start with a new chapter where the idea is I will try to touch upon some of the most important segments of my life, which includes my mentor, which includes my friends, which includes my family, which includes my office people, and a lot other people who play a very critical role in defining what I do every single day and defining what I actually do in my life. So to start today, most important aspect I believe of my life is how I take my inspiration from people who I believe have excelled not just their professional stuff, but everything how they are as person. So today's chapter is about School of Human Intelligence, the mentor. And I'm so happy, I'm so elated, and I'm so proud to bring today on this call Mr. Subodh Garg. Uh, Mr. Subodh or Subodh, I think Subodh sir, rather, what I always call him. He's not just a mentor, he's a friend, he is an inspiration. He's someone, when I started my corporate life way back in 2012, someone who I looked upon as a person, okay, I want to become someone like Subodh. So I met Subodh sir in 2012. Uh, in my first job in Max Life Insurance, I was neither reporting to him nor I was working in directly in his team. But still, I saw a person on the floor who I found super charismatic. And the good part, I think Subodh sir also found young people like us equally charismatic, and that's how we started talking. So Subodh sir is a distinguished personality in finance space. He has been a very senior leader in Max Life Insurance. Post that, he led finance for Health Card. Then for Picker Technologies, where I also worked with him, which we will try to cover later in the video. He was the one who actually played a critical role in ensuring Picker gets acquired by Shiprocket for $200 million. He was leading the entire finance for that. I think a dream come true for any CFO. And today he is leading and acting as a CFO in Cashify, and I'm sure he must be doing some great stuff there too. So Subodh sir, thank you so much for coming. I am not very sure is was this introduction a good enough introduction to define a person like you, and how you have played not just an important part in my life, but probably thousands of people you have worked in more than 20 years of your corporate life. So welcome to the show, sir, and would love to start with a quick anything what is coming on top of your mind. Okay. First of all, thank you very much, Nipun. And introduction is like more than sufficient. But anyways, uh, as I know you as a person, I mean, it is something like people say that ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती. So it is more like that when two similar type of personalities meet each other, so they somehow connect. So that connect to that bond is not something which you can create. It is like something is there. It's sort of a magnet, and you get automatically attracted to the people of your type. Yes. So in today's scenario or the Gen Z world, like the vibe, because sometimes your vibes match with the, and vibes is not only at a party place. Vibes are at friends' place. Vibes are at office, because in office also it is more often, and you will hear this word vibe Yes. a lot from me during the conversation. Reason being that uh, when you say intelligence, or because you said in the beginning, I also heard a lot of your initial podcasts. So over there, that human intelligence. Uh, in that space, I believe that intelligence is more about uh, finding a person of your taste. So that is one of the biggest intelligence, which I feel that if that thing is done, then most probably 80% of anything
has been done. Because in the office, you are not, if you are going to office on any day, uh, as I was hearing somewhere, like, because one of your talk about a security guard who made your day happy. It was So, actually picker story, sir. yeah, so that's why I mean, it is like uh, how frustrated you are at the road, how frustrated you are at home, or how difficult is the work. But if you have four people of your same, I mean, where you can gel up, so then most of the things get automatically done. I mean, you need not to think. I mean, because the that is like the intelligence in the work. You don't know from where it is coming, but it is automatically coming. The only thing that if you have a circle of your friends at work. So for me, it is the most important thing. I mean, and in my entire career of 30 years, human is the, I mean, 95% is like finding the right human using your intelligence. Yes, sir. So that because work is just 5%. Well said, You sir. mean, people normally, when they are coming to our office, so when they are coming, because in so many years, so many people have come. So and I think less than 20% of the time they talk about how difficult is the work. Yes. More than 80% they talk about how to handle the situation. Yes. And when you talk about situation is 90% driven by the people. The situation is never ever like you have a very complex problem and you got stuck. No, situation is that you need to get things done on a particular time, and you are answerable to someone. Someone is answerable to you, and he's not doing, or some of the colleagues are not supporting, or cross-functional issues, or boss and subordinate issues. So all type of problems, but situations are most of the time related to human. And as far as I feel myself slightly blessed, or because I may not be that technically sound in my work, but yeah, I mean, people like you, and as you said, that there are a couple of other people who are like quite intelligent in their work, and it's like that there is a uh, river with a heavy flow. The only thing you have to direct it. You have Yes. to just give a direction. Because if you don't give direction, they go all the way. I mean, here and there. But if you give a direction, okay, for some time, river may not like it, but at the end of the day, uh, Yes. river is also happy because it's find its way and it finds its purpose also. So 100%. that's my initial thought. I don't know whether it fits into your conversation or not, but yeah. No, sir. Definitely it fits in, and trust me, there are so many instances in office when I end up quoting either one of your statement or one of an example. Okay, let me tell you one thing. मेरे एक सुबोध सर हैं, and जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, how I got influenced from him, या फिर मैं उनको हमेशा वो वाला एग्जांपल बताता हूँ कि okay, how when I closed down my business in 2020-21, I ended up calling Subodh sir, and he told me two things primarily. One, he told me that अपन कभी कभी फ्यूचर प्रॉफिट कमाने का ना सोचने से बेटर है कि आप अपने करंट लॉसेस को स्टॉप करें. एंड जब तक मैंने ये स्टेटमेंट नहीं सुना था, मैंने रियलाइज नहीं करी थी ये कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है. बट जैसे ही मैंने वो डिसीजन लिया, शायद आपकी एक कॉन्वर्सेशन के बाद, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, आई वाज हाफ रिलैक्स जस्ट बाय स्टॉपिंग दैट बिजनेस देयर एंड देन. क्योंकि ठीक है, मुझे दुख हुआ कि मैंने अपना 8 ईयर ओल्ड बिजनेस क्लोज किया, बट एटलीस्ट आई वाज इक्वली इन पीस कि अच्छा, कल से मेरे को कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस बियर नहीं करने हैं, तो एटलीस्ट फुल स्टॉप लग गया है. एंड सेकेंड, हाउ आई टेल सो मेनी पीपल, आपको शायद पता भी नहीं होगा, क्या बहुत चीजें तो आपको आइडिया भी नहीं होगा, एंड दैट्स द बिगेस्ट पावर आई फील अबाउट पीपल, कि जब आपके बारे में कोई बात कर रहा है जो आपको भी नहीं पता है, एंड द गुड थिंग्स, आई एम ऑफ कोर्स आई एम
I'm talking about the good conversations. कि आपको जब ये पता भी नहीं है कि आपके बारे में कितने लोग आपके पीछे से अच्छी बातें कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स वेयर यू एक्चुअली विन इन योर लाइफ. एंड मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने रिपोर्टीज को, थैंकफुली मैं शायद अपने आप को आज वहां देखता हूँ जहाँ मैंने आपको 2012 में देखा था मैक्स लाइफ में. तो जैसे मैंने कभी आपको उस नजरों से देखा था कि ओके आई वांट टू बी सुबोध इन फ्यूचर, आई एक्चुअली नाउ सी दैट ओके सो मेनी पीपल रिपोर्ट इनटू मी एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट ओके आई आल्सो एक्ट वेरी वेरी इंस्पिरेशनल टू देम. तो मैं उनको बहुत बार वो एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे सुबोध सर ने मुझे पिकर के अंदर वो एक मौका दिया था, ये बोल के कि अच्छा मुझे पता है कि यू आर अ गुड गाय, तो मैं तेरे को कनेक्ट करा सकता हूँ. मैं तुझे ऑफ कोर्स ये नहीं बोल सकता कि मैं तेरे को जॉब गारंटी दूंगा, ना मैं तुझे ये गारंटी दे सकता कि तू जब जॉब में आ जाएगा तो तेरी सक्सेस मेरे हाथों में है. मैं तुझे बस कनेक्ट करा सकता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं तुझे 10 सालों से जानता हूँ. उसके बेसिस पे आई कैन कनेक्ट यू एंड रेफर यू एंड रेस्ट एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स. But how that one small action of yours, which I know was from heart and not from mind, has actually changed life for a person like me. तो हमें शायद पता भी नहीं होता है कि हमारे कौन से एक्शंस किसी के लिए कितना मैटर करते हैं. बट जब कोई ऐसे एक्शंस करे जाते हैं जो दिल से लिए जाते हैं ना, मुझे लगता है कि वो पावरफुल होते हैं बहुत ज्यादा. और कुछ बार आपको पता होगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया है, कुछ बार आपको नहीं भी पता होगा बिकॉज सामने वाला शायद आपको आके बताया नहीं. तो मुझे लगता है इसलिए मैं बड़ा प्रोपोगेंड करता रहता हूँ ये बात कि कभी भी कोई स्पेशल कुछ करे तो उसको बताओ प्लीज जाकर. मैंने तो शायद आपको भी 10 दिन पहले भी एक मैसेज करा था जब मुझे वो एनुअल अवार्ड्स पे अवार्ड मिला था कि सुबोध सर आई वॉन एन अवार्ड इन रेजर पे एंड थैंक यू सो मच फॉर इनेबलिंग मी टू रीच दिस पोजीशन इन माय लाइफ. तो मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ सर. मेरे को लगता है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनको पता होना चाहिए कि वो अच्छा करते हैं. एंड प्रोबेबली दैट्स वेयर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू विल कम फ्रॉम. मुझे जानना है सर कि what do you think is this something as a trait which we are born with, or is this our is that being influenced by our childhood or our upbringing, our family, our first job, our first boss? uh, ये जनरली why do you feel कि कुछ लोग अपने आप को दिल से ड्राइव करते हैं और कुछ लोग दिल से ड्राइव नहीं करते हैं? From where does this even come from? Any examples or anything which you can recall from your initial years of your life? Hmm. Okay. So if I look at it, because this is definitely not something which you can say, okay, you learn it from anywhere. You don't learn it. It comes into you automatically, and I think that there are a lot of things which are there. It's more when it's all depend on your the surrounding where your entire childhood. And when, because I understand that you shape yourself up till age of 24, 25, max to max. I mean, Yes. after that you don't shape, you are pretty much matured, mind is also matured, and your behavior, your attitude, everything is like, it can shape a little bit here and there, but ultimately the type of person you are there. So it all depends that where you spend your initial years. Like, as I know you, you spend your years in your family with your father initially, with then supporting mother, sister, and supporting the business. So it was a very emotional sort of upbringing which was there. I mean, their heart is coming first and mind is coming next. Because if mind is coming first, then you will think of yourself. Yes. But if heart is coming first, then definitely you will think of others. And when you will think of others, you automatically have a habit of recognizing people in a way that how you are interacting. So that is the main step. And because in my childhood also, I was also very, very, because I think that emotional front was so high because you are continuously, whether it's your neighbor, whether it's your teacher, your colleague, nobody is attached to you because either you are intelligent, or you are good looking, or you are rich. They are with you just because you are you. Yes, sir. So there is no meaning into it. I mean, there is no hidden agenda.
okay, today, if after the age of 25, maybe or 24, maybe I will make friends who are either very successful in the career, who are either, I mean, having good background, very influential people. So that becomes a criteria in the childhood that you are connected with the people of your own taste, irrespective of their background, education, money, social status, anything. You may be scolded a number of times by your parents that, okay, this guy is not good, don't be friend with this or that. But still, you know that you gel up. So I think that the emotional part of that intelligence of nice people is coming from there only. And second thing that is most important, that when you start doing that and you see early results of that, and early results are very positive. So then automatically, I mean, you are telling a story basically at that time in 2012 when you came, and you were a good guy over there. I didn't do anything so great about you at that time, but in 22 years connecting. But when I was, I am talking about in 90s, in 1990, there was a guy who used to work in my friend's shop. Okay. So that friend is having a shop of very basic sarafa. So Got he it. used to work there, and at that time I was in my graduation, and he was into ninth class. That guy. So one day while I was sitting, because uh, I was sitting in his shop, and he was also there. So he said, I usually like that guy because very talkative, very. matlab, he used to work just because of the family thing. So I just asked him, पढ़ ले तू क्यों बिना बात के इसमें लगा हुआ है. Right. तो उसने बोला भैया सोच भैया अभी तो मेरे पास मेरे सिस्टर की शादी करनी है, पापा का ऐसा हो गया, एंड हमारे पास कुछ कर्जा भी है. तो मैंने कहा ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, मैं भी ट्यूशन पढ़ाता था तो बहुत पैसा तो नहीं होता था कि आई कैन सपोर्ट हिम विद मनी. तो एक दिन बातों में हुआ बात, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि अच्छा तूने कभी सोचा तो होगा, तेरी किसी चीज की इच्छा तो करती होगी. तो उसने सिर्फ एक बोला कि मेरे को ना एक पैंट शर्ट जो है, नई पैंट, यूज वाली नहीं, नई पैंट. Hmm. तो मैं पता नहीं दिमाग में क्या आया कि उसको एक वो पैंट दिलवा दिया, शर्ट दिलवा दिया. उसके बाद में दैट गाय बिकम लाइक, उसने जैसे भी किया, लेकिन ही बिकम later on in his life, he became a chartered accountant. Wow, wonderful. एंड एक दिन जब मैं मुजफ्फरनगर गया था तब वो आया, भैया आपकी पैंट अभी भी रखी है मेरे पास वाली. मैं कहा, कौन Wonderful. सी वाली है? बोला अरे 10वीं में आपने नहीं दिलवाई थी. कहे उससे मेरे को मतलब, ही गेट सो कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट. उसे सिर्फ एक ही बात बोली थी निपुण कि देख तू Hmm. पढ़ना चालू रखियो, कभी भी तेरे को पैसे की जरूरत होगी तो अजय भैया से, मतलब जो मेरा दोस्त था, उससे मेरा Yes. नंबर लेके कभी भी Yes. फोन कर दियो, कभी भी दिक्कत हो. तो उसके बाद में मुझे याद नहीं था कि उसकी सिस्टर की शादी हुई थी, तो मैंने उसकी सिस्टर की शादी में कुछ पैसा भेज दिया था उसके. Yes. तो उन्होंने कहा आपने जो पैसे भेजे थे ना, उससे मतलब कि बस आप पूछो मत. तो मतलब दैट, तो वो जो चीज थी कि जब आप बीएससी में हो, जब आपके पास सोर्सेज नहीं है, एट दैट टाइम यू रिकॉग्नाइज द Yes. पावर ऑफ दिस लिटिल इन्फ्लुएंस एंड पावर ऑफ आइडेंटिफाइंग पीपल. Yes, sir. Yes. तो वहां से चलते चलते फिर मतलब जब आप ग्रेजुएशन में आए, मतलब जब सीए कर रहे थे, तो सीए करते करते आई मीन यू गेट टू नो अबाउट सर्टेन पीपल कि ठीक है इसके साथ में ऐसा है, एंड देयर आर Right. सम फ्रेंड्स. तो वहां पे लोगों को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करके उनको हल्का सा, तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हु आर गुड, दे जस्ट नीड ए लिटिल पुश. Yes, sir. बहुत Yes. छोटा सा पुश चाहिए होता है उनको. उनको मतलब जैसे अगर कभी तुम जब ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए जाते हो तो Mm-hmm. ट्रिप पे लेके जाते हैं,
तो right, उस right, स्टेज पे वो कहते हैं कि जंप कर जाओ, right, बट sir. नॉर्मली यू डोंट जंप, यू आर स्केयर्ड ऑफ जंपिंग। Yes, पीछे से कोई हल्का सा पुश कर दे, आप जंपिंग कर जाते हो, आपको यू एंजॉय इट। yes, sir. Yes, बट वो एक मोमेंट दैट पर्टिकुलर पुश, तो दैट पुश इज लाइक, एंड वो पुश आप ऐसा नहीं कर सकते, आई मीन पीपल जो ये आप वहीं दे सकते हो पुश की जो सेल्फ स्टार्ट होना जानता हो, right, sir. Right, बिकॉज यू कांट गिव दिस पुश कंटिन्यूअसली। अगर सड़क पे भी किसी की गाड़ी होती है, आपने उसको एक हल्का सा पुश लगा दिया, right. तो मतलब ये वे बैक, तो ये वहीं से एक कनेक्ट आता है। एंड इस कनेक्ट में मतलब सन 84 5 85 85 86 86 में व्हेन आई वाज इन माय 10th, पता क्या है उस टाइम पर एक बेसिक वो बनाया था, अपने आप एक रूल बनाया था व्हेन आई वाज 13 बोर्डिंग इयर्स, Okay, कि डेली एक अच्छा काम करना है। अब wonderful. डेली एक अच्छा काम करना है तो क्या करना है कि मतलब, अब पहले दिन क्या हुआ अच्छे काम में, कैसा अच्छा काम कैसे होगा, तो उसमें क्या हुआ कि somebody was going through bicycle, उसका कोई पीछे से सामान गिर गया, तो थोड़ा सा सपोर्ट लगवा के उसका सामान उसकी साइकिल पे वापस रखवा दिया। Okay, दूसरी फिर अगला दिन आया, तो अगला दिन एक, जैसे पहले हाथ गाड़ी होती थी, तो हाथ गाड़ी अब होती है कि कहीं पे ब्रिज आता है, तो एक रिवर का ब्रिज आता था, तो उस पर वो बंदा चढ़ा, तो पीछे से हल्का सा सपोर्ट लगा दिया उसको। yes, sir. तो वो दे दिया लाइक, वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनको थैंक यू बोलना नहीं आता, उनको बिल्कुल, धन्यवाद बोलना भी नहीं आता, बिल्कुल. उनको सिर्फ एक बहुत ही अच्छी सी नजर से आपको देखना आता है। Yes, yes, yes. And that's powerful. I know. I'm sure. वो केवल देखते हैं आपकी तरफ, हाँ, वो आपका वो सिर भी नहीं झुकाएंगे, नमस्ते भी नहीं करेंगे, थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, right. तो बस आपकी तरफ देखेंगे, ब्राइट आईज, हल्की सी स्माइल के साथ। Yes, 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 yes. तो तीसरे दिन हुआ तो फिर मैं जा रहा था, एंड मोस्टली ये सब चीजें होती थी बिकॉज आई गो टू हैव आवर मिल्क फ्रॉम 3 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, एंड Okay. क्योंकि वहां पे से वो, अब मुजफ्फरनगर जैसी जगह पे होता है ताजा दूध, तो हाँ, फ्रॉम ताजा पर्सपेक्टिव सो तो आई यूजुअली गो। तो एक होता है कि जो बुलक कार्ट होती है, तो बुलक कार्ट पे somebody was going and it was like he was alone, and वो थोड़ा ऊपर चढ़ रहा है, तो या तो वो करता है तो गाड़ी नीचे खिसक जाती है, नहीं तो बुलक को जाता है, तो उसमें yes, से केवल इतना करना था कि आई सेड कि ठीक है, इसको मैं बुलक की जो रस्सी होती है उसको मैं पकड़ता हूँ, आप पीछे से जाके इसको, तो कुछ एफर्ट नहीं लगा, लेकिन हल्का सा किया तो वो उसकी वो बाहर निकली। wonderful, तो wonderful. ऐसे करके करीब, मतलब ये मेरा चला होगा करीब 42 डेज, Wow. तो 42 डेज तक लेकिन किया डेली, छोटे से छोटा किया, बहुत छोटा किया लेकिन किया। तो You will say कि something which happened, let's say for those 40 days is what stayed with you and आपको realize हुआ कि मतलब मतलब उस बीच में आई डोंट नो कि whether anybody of them have come back to me. हम्म. I was like very humble background, so that's why I was not having money, so I can't support anybody with the money. Right. उस टाइम पे ये रिकॉग्नाइज करना कि आपके पास में क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल, एंड वो जो क्या है उससे आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल यू सर. डोंट हैव रिसोर्सेस, एंड I was not having a built over there. I mean, I was like hardly 4 foot by that time. तो आपके पास में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में, इसलिए कैन यू डू समथिंग। यस सर. तो बस वही था कि मतलब फ्रॉम देयर वो जो लुक होता है, वो जो मतलब अब ग्रेटिट्यूड का कोई नाम नहीं होता। आप राइट बड़े सर. बड़े मैसेज लिख के बोल दो कि ये थैंक यू है, आप छोटे से मैसेज से बोल दो, आप बिना कुछ कहे बोल दो, आप सिर्फ देख के बोल दो, राइट सर. राइट. हैंडशेक से बोल दो, तो ग्रेटिट्यूड की कोई लैंग्वेज नहीं होती। बिल्कुल सर. बिल्कुल. एंड ये करना इज नॉट आउट ऑफ समथिंग लाइक विच यू थिंक के आपको पसंद आता है, या आप यू यू नीड समथिंग इन रिटर्न।
इट लाइक रिटर्न वहीं हो जाता है, जैसे ही किसी ने हल्की सी स्माइल दी आपको तो वहीं खत्म हो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन गेट क्लोज देयर। तो आई मीन इट्स नॉट लाइक कि ट्रांजेक्शन अगली, अब आगे कुछ ना। चलो तो अग्रीड सर, अग्रीड। आपके पास में ये है कि आप कहीं पे खड़े हो, कुछ खा रहे हो, कोई बच्चा आया कोई मांगने के लिए, हम्म। कहते हैं भिखारी को कुछ नहीं देना, बेगर्स को कुछ नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना, बट वो एक इंडिविजुअल है, मतलब वो एक कंसेप्ट एक अलग है, वो एक इंडिविजुअल है। राइट 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 उसको अगर आपने एक समोसा खरीद के दे दिया मैगी में और उसने आपके सामने खा लिया, राइट। तो वो जो आपके पास में है, आपके बगल में कोई कुत्ता खड़ा है, कुत्ते को आपने प्यार से पेट कर दिया, अब वो पलट के देखता है, तो मतलब इट्स नॉट ओनली ह्यूमन, इट्स लाइक एनिमल। और उस 42 डेज में कहीं कहीं 10 दिन तो ये कुत्ते का बिल्ली वाला था हिसाब के था, बिल्कुल सर, बिल्कुल कि आपने किसी कुत्ते को उठा के उसके पास में से हल्का सा कोई कट्टा या बोरी होती है वो उसको बांध दिया कि वो ठंड है तो चल रही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो या उसके बाल साफ कर दिए। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जहां तक मुझे लगता है ह्यूमन का जो कॉन्सेप्ट है, इमोशन वाला कॉन्टेक्स्ट, ये वहीं से आया था चलता हुआ, नो नो वहीं अग्रीड। से चलता चलता धीरे 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 धीरे, तो इट इज नॉट लाइक किसी ने बताया किसी ने किया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली रिजल्ट आने बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि लोग मतलब बहुत बड़ा एजेंडा उठा लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन, मतलब अपने आप को इमोशनल कनेक्ट करने के लिए कि बड़ा एजेंडा की मतलब ठीक है, आई नेवर पिक अप एजेंडा विच इज बियॉन्ड माई ओन पावर। अब क्योंकि थोड़ा पैसा आ गया तो अब मेरे पास में पिछले इस साल नहीं किया, पिछले साल नहीं किया, उसके पहले आई यूजुअली गो टू, विंटर्स में होता था, सड़क पे निकलते थे अपनी साइकिल लेके, पीछे कंबल रख लिया, यस सर। तो हर सर्दियों में कहीं कहीं 100 कंबल, खासकर उन लोगों को। एंड ये मैं हमेशा से फिलोसफी रहा है कि जो मांगता है मैं नॉर्मली उसको नहीं देता हूँ, जो प्रयास कर रहा होता है, जो एफर्ट कर रहा होता है, उसके में राइट मैं थोड़ा सा एफर्ट लगाता हूँ। मतलब इसका मतलब यह है कि जो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट जो खाली खड़ी है कंडम खड़ी, मैं उसमें बिना बात के नहीं करूंगा। राइट 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 बंदा जो एफर्ट मार रहा है राइट। उसके में हल्का सा एक सपोर्ट लगाऊंगा। नो सर, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी काफी। ऐसे ही जैसे पेट्रोल पंप पे एक बंदा था, वो रात को 9 बजे हवा भर रहा था, मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा रहने का ये, एंड शर्ट में था, दिसंबर था, हम्म। 5 साल पहले, मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये ग्लव्स ले ले, ये कैप ले ले और एक स्वेटर। तो उसने कहा साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा पैसे नहीं, ये तू रख ले। राइट राइट। तो पर मैं कभी यूज चीजें नहीं देता किसी को, तो नया ही था कंबल, नया था वो, तो उसने देखा तो उसने मतलब ही वाज सो हैप्पी। उसने कहा कल भी आओगे आप, मैं अपने एक दोस्त को लेके आऊंगा। राइट राइट। उसका ग्रेटिट्यूड ये था, मतलब उसके ग्रेटिट्यूड में कुछ नहीं था, थैंक यू पेन कुछ नहीं। एंड आई थिंक अगर वो थोड़ा सा भी उसका इंटेंट अच्छा नहीं होता तो ही कुड हैव इवन आस्क्ड यू फॉर वन मोर पेयर ना ना इमीडिएटली राइट देयर। ना, तो कुछ नहीं ही वाज मतलब। राइट। तो आई थिंक आई एम श्योर आपको भी लगा होगा कि यस, अगर ये कल वापस अपने दोस्त को लेके भी आएगा तो व्हाई शुड आई नॉट। मतलब उसमें से एक बंदे को उस दिन मैंने दिया, एक ट्रक ड्राइवर था, हम्म। अब उसे जहां जाना था वहां जा नहीं पाया, नो एंट्री लग गई। वो आया था गुजरात साइड से, ओके ओके। तो वो यहाँ पे किसी पेट्रोल पंप पे वो करके खड़ा हुआ था, नीचे बैठा था आगे लाके, मैंने कहा ये यहाँ पे इस टाइम पे आप, रात का टाइम था, कई 9 बजा था, कह रहा साहब गुजरात से आए, हम आए तो वहाँ ठंड है नहीं, अब यहाँ इतनी भयंकर ठंड है तो रात गुजारनी है यहाँ पे। उन्होंने से कहा, मैंने कहा एक कंबल दिया आपके दो, मैंने कहा इनसे काम हो जाएगा, कह रहा साहब मैं कैसे वापस दूंगा आपको। और तब की बात है जब सलमान खान वाली पिक्चर नहीं आई थी कि तुम आगे किसी को दे देना, किसी ने लाइक होता वो, तब राइट। नहीं आई थी वो पिक्चर, तो मैंने लेकिन उससे मैंने कहा देख तेरी जरूरत खत्म हो जाए तो सड़क पे किसी को ये वाले कंबल दे दिए जिसको जरूरत है, बिल्कुल सर, बिल्कुल वापिस कहाँ लूंगा मैं तेरे से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस टाइम से थोड़ा सा अब ये वो जिसे कहता ना हंगर बढ़ती चली गई थोड़ी सी, कि आपके पास में टू अंडरस्टैंड पीपल विदाउट गोइंग सो मच डीपर कि इसके वो क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके रेसिपिकेशन क्या होंगे, कि मतलब इसका अननेसेसरी आप ये सोचना कि मैं ये कर रहा हूँ पता नहीं इसका ये क्या कहेगा, इसका वो क्या कहेगा, तो राइट राइट राइट। वो एक हल्का सा, आई मीन दैट वाज
विदाउट गोइंग डीपर, क्योंकि जैसे ही आप डीप जाते हो ना यार, यू स्पॉइल्ड, आप पूरी ट्रांजेक्शन स्पॉइल कर देते हो, क्योंकि जब आप जाते हो आप टेक्निकलिटीज में जाते हो कि मैंने इसके ऊपर अगर ये किया तो इसका ये क्या सोचेगा, इसका वो क्या सोचेगा, राइट राइट राइट। तो नॉर्मली आई डोंट गो इनटू दैट। तो फेयर फेयर फेयर। तो सर मुझे ये यहाँ से आपसे बात समझनी है, मतलब आपने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया कि हाउ स्मॉल एक्शंस वी डू इन आवर अर्ली लाइफ, हाउ दे स्टे विद अस एंड हाउ पावरफुल आर actions which are purely around kindness and where we don't expect anything in return. मैं भी ऐसा ही हूँ और मैं भी अपने बहुत सारे एक्शंस ऐसे ही लेता हूँ, बट वन थिंग आई थिंक व्हाट यू कैन ऐड द मोस्ट इनसाइट्स ऑन इज, आई एम श्योर आप 30 साल से ऑलरेडी सर जॉब एनवायरनमेंट में हो, और आप तो आई थिंक हार्ड कोर जॉब एनवायरनमेंट में हो, कि शायद आपने 90s की कॉर्पोरेट लाइफ भी देखी है, 2000s की भी देखी है, और अब आप वो वाली कॉर्पोरेट लाइफ भी देख रहे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी टू बिल्ड बिजनेसेस वाला वर्ल्ड देख रहे हैं, जहाँ पे आइदर या तो आप टेक्नोलॉजी लीडर्स हो या आपको टूल्स एंड रिसोर्सेज कैसे यूज करने आते हैं, विच आर ऑल जेन आई फर्स्ट, वो बहुत अच्छे से आते हैं। तो इन दो लोगों की सबसे ज्यादा वैल्यू है। शायद एक फाइनेंस इकोसिस्टम का ही मुझे लगता है जो जॉब करने के तरीके थे, कि शायद पहले बहुत सारे रिकंसिलेशन के लिए लोग चाहिए थे, कुछ लोग अकाउंट मैनेजमेंट के लिए चाहिए थे, कुछ लोग किसी और चीज के लिए चाहिए थे। आई एम श्योर ओवर द टाइम सब कुछ, सारे वर्ड्स बदल रहे हैं, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी स्पेस, बट हाउ यू मैनेज फाइनेंस, हाउ यू मैनेज पीपल। तो मुझे आपसे सर ये जानना है कि, एंड ये मेरे साथ एक बहुत ज्यादा चैलेंज है एंड आई एम ओपन टू एक्सेप्ट दैट इन पब्लिक, कि अब you think emotionally, you want to be following the same ethos or same principles at your work also, that okay, how you value people always more than let's say any other rational ways of thinking. तो जब आप एक इतने बड़े रोल पे हैं, आई एम श्योर, अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि आप सीएफओ हो कैशिफाई के, आई एम श्योर आपका एक डिसीजन इधर उधर मल्टी करोड़ रुपीस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो हाउ डू यू स्टिल मेक श्योर सर कि यू आर अ पीपल पर्सन, you are leading a team of I think 50, 100 or 200 people, आप अभी भी अपने पुराने सारे लोगों से अच्छे से टच में हो, और आप अभी भी ऑफिस में कुछ ऐसे डिसीजन आई एम श्योर लेते होंगे जो अल्टीमेटली कंपनी के फेवर में है, बट वो डिसीजन लेते हुए आप फिर भी लोगों के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। मतलब जस्ट टू रिआइटेट दिस स्टेटमेंट, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी के फेवर में कुछ डिसीजन लेना मतलब कि हमें किसी ना किसी को उसके लिए वो करना पड़ेगा, मतलब किसी ना किसी को उस डिसीजन को पॉजिटिवली लेने के लिए दो तीन लोगों को तो नेगेटिवली इंपैक्ट करना ही पड़ेगा। मुझे आपसे ये समझना है कि ये कैसे किया जाता है बहुत खूबसूरती से। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बट मुझे लगता है मैं ये कंटिन्यूसली करना चाहता हूँ कि मैं कंपनी के फेवर में भी सोचना चाहता हूँ हमेशा, और अपने आसपास वाले लोगों के फेवर में भी सोचना चाहता हूँ। बट हाउ डू वी फाइंड दैट बैलेंस, दैट वेयर वी आर डूइंग बोथ द थिंग्स इन अ रियली रियली गुड वे, एंड नथिंग प्रोफेशनली इज बीइंग हैम्पर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ओके, आप इमोशनल हो, आप काइंड हो, या आप ज्यादा दिल से डिसीजंस लेते हो। कैसे इसको एक पावर बनाई जाए और कैसे इसको एक यूनिक ट्रेड बनाया जाए, वर्सेस कोई आके ये कह दे कि नो, तू अच्छा लीडर नहीं बन सकता बिकॉज यू आर एन इमोशनल गाय और यू थिंक फ्रॉम हार्ट। आई रियली वांट योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट, बिकॉज मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं यही बिलीव करूँ आगे भी, 15 साल बाद भी अपने करियर में मैं चाहता हूँ कि मैं सेम स्टेटमेंट्स रिपीट कर रहा हूँ, ना कि ये बोल रहा हूँ कि नो, मुझे वक्त ने बदल दिया और मुझे सिचुएशंस ने बदल दिया, क्योंकि अगर मैं वैसा एक्ट करता रहता तो शायद मैं ग्रो नहीं कर पाता कॉर्पोरेट लाइफ में। सो वुड लव टू हियर योर थॉट्स सर। ओके, ये देखो बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीज है। आई मीन दिस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। राइट राइट। रीजन बीइंग के एक ट्रेट है कि मतलब आपके पास में, बिकॉज पता नहीं लोगों ने कह रखा है कि इमोशनल पीपल कांट बी एग्रेसिव, यस। एंड इफ यू आर नॉट एग्रेसिव देन you can't be a good leader. So यस I don't think aggression has nothing to do with emotions or यस not emotions. यस यस Aggression is totally different from being a emotional guy. यस Aggression होता है कि आपके पास में कि मतलब if you are really passionate about something you will be aggressive. एंड आपके पास में, एज यू सेड, कि एक इमोशनल होने के साथ में कंपनी का इंटरेस्ट वर्सेस लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग हमेशा हर चीज को 90% पैसे से जोड़ते हैं। एंड पैसे में ये है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है पैसे बचाना, और एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसे कमाना। तो मतलब बहुत ही दोनों एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम में ऐसे काम कर रहे हैं कि आपका
एक दूसरे के थोड़ा सा ऐसा लगता है कई बार कि दोनों में अगर मैंने इनको ज्यादा दिया तो मेरे पास में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो एक आपका निपुण ये शुरू से क्लियर रहा है, जो मैंने शुरू में बोला था कि इफ यू आर इमोशनल होने से पहले एक बहुत जरूरी चीज है ये आइडेंटिफाई करना कि कोई बंदा प्रोडक्टिव है या नहीं है, बिल्कुल या फिर वो बंदा मतलब डे जीरो पे ही कि उस काम के लिए फिट है या नहीं है। कोई बंदा, जैसे मैं शुरू से मेरा कॉन्सेप्ट इमोशनल में या इसमें रहा है कि जो बंदा 80% तक है उसे बस जरा सा पुश देके 90 पहुंचाना है वहां तक, पर क्या बंदा वास्तव में 80 पे है? राइट। अगर बंदा 20 पे ही है तो क्या तुम उसको कंटिन्यूअस वो करोगे? बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर यू नॉट फॉर द कंपनी। राइट तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये क्लियर कर लेना कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, उस डिसीजन को लेने के लिए जिनके लिए वो डिसीजन ले रहे हो वो किस स्टेट में है। ओके इंटरेस्टिंग। अब अगर मेरे पास में मेरी लीडरशिप टीम में सपोज 35 बंदे हैं, उस 35 में से उन 3 के ऊपर मैं एफर्ट मार रहा हूँ काफी टाइम से, लेकिन वो 3 उतना तेजी से मेरे पास में, तो मेरे को उनके साथ क्लियर कट एक कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा कि यू मे नॉट बी फिट इन दिस कंपनी, मे बी या तो 6 महीने के अंदर ये 3 चीजें कर लो, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर देन देयर आर, तो यू गिव ए वेरी स्पेसिफिक टारगेट्स, वेरी स्पेसिफिक चैलेंजेस विद प्रॉपर गाइडेंस। 3 महीने का 6 महीने का कुछ भी आप दोगे और उसके बाद में अगर वो बंदे कर लेते हैं तो मतलब इट मीन्स दैट कि गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन अगर नहीं करते हैं एंड इन 90% ऑफ द केस जो अब 40-45 का हो चुका, अगर वो पहले नहीं किया है 2 साल 3 साल तो 3 महीने में नहीं करेगा। मेक सेंस मेक तो सेंस। वहां पे फिर आपके पास में बड़ा पोलाइटली दैट कॉन्वर्सेशन, देन इफ यू आर इमोशनल, आपको सबसे पहले ये बात हिट करेगी, आप सबसे पहले बोलोगे यार इसने तो बिना बात के फायदा उठाया, इसको तो नाउ। तो इमोशनल होने का एक फायदा है, नुकसान नहीं है। ओके ओके। क्योंकि अगर आप रेशनल होंगे तो रेशनल होने का ये यहाँ पे नुकसान आता है रेशनल होने का, क्योंकि आप रेशनल होंगे तो आपके पास में आएगा अरे पहले इसका बैकअप ले आता हूँ, पहले इसका ये ले आता हूँ, पहले इसका वो ले आता हूँ। लेकिन अगर आप इमोशनल होंगे आप सोचोगे यार जब काम ही नहीं कर रहा तो क्या फायदा रखने से, ढूंढेंगे नया बंदा। तो बीइंग इमोशनल, इमोशनल में आपके डिसीजन उतने, क्योंकि रैशनल नहीं होते हैं तो आपके डिसीजन जल्दी भी होते हैं, आपके डिसीजन जो है बहुत ही सुलझे हुए सॉलिड डिसीजन होते हैं आपके पास में, विच इज नॉट इम्पैक्टिंग ईदर वे। और जहाँ राइट तक कुछ कंपनी की उसकी बात होती है तो मतलब एक लास्ट ईयर लाइव एग्जांपल, मतलब ये रियल एग्जांपल था कि सम ऑफ द पीपल एज यू ऑलवेज से कि मतलब थोड़ा सा मेरा लोगों की तरफ वो रहता है, तो वी यूज्ड टू डू टाउन हॉल एंड वी यूज्ड टू डू टाउन हॉल इन द कंपनी इटसेल्फ, एंड उसके बाद में समोसा खिला दिया टाउन हॉल के बाद में। तो पीपल से कि टाउन हॉल तो बहुत ही अच्छी होती है, एनुअल टाउन हॉल होती है, एनुअल कंपनी का फाउंडेशन डे जो होता है उसमें ऐसे थोड़ी ना होता है। आई मीन इट शुड बी समवेयर इन गुड प्लेस एंड पीपल आर क्रेविंग लाइक क्रेजी, मतलब दे आर नॉट डिस्कसिंग। आई मीन इन वन ऑफ द मीटिंग most of the people said, so at that time we were making losses। तो अब सीईओ ने भी बोल दिया ओके, इसका जवाब तो आपके सीएफओ साहब देंगे। तो राइट राइट। इन द एंटायर पब्लिक, तो while I went there, मैंने यार देखो पार्टी करने का मजा तो अपने पैसों से ही है, उधार लिए हुए पैसों से पार्टी करने में मैं तो बिलीव नहीं करता। मैंने कहा अगर मैं इन्वेस्टर का पैसा लेकर उसे जला रहा हूँ एंड मैं उसमें पार्टी भी कर रहा हूँ, अगर धंधे के लिए जला रहा हूँ तो समझ में आती है, लेकिन अगर मैं पार्टी के लिए जला रहा हूँ, राइट मैंने कहा मेरा तो ईथोस अलाउ नहीं करते। राइट। जिस दिन अपना पैसा कमाऊंगा उस दिन करूंगा। ऑफ कोर्स व्हेन यू सेड अपना पैसा मतलब कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी, राइट। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा जब लॉसेस कट डाउन हो जाएंगे तो बिलीव नहीं करेगा निपुण, मतलब रूम वाज फुल ऑफ क्लैपिंग, यस सर यस। मतलब वहां बैठे होंगे कहीं कहीं 800 लोग, यस यस यस। एंड 800 में से कम 100 लोगों ने बोला सर अगले साल आपको प्रॉफिट करके देंगे। And then that tells me sir like how sometimes जो इमोशनल लोग होते हैं और जो दिल से सोचते हैं ना उनको बड़े अच्छे तरीके पता होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में आंसर देने के।
वो शायद बिकॉज वो प्लीज करने में बिलीव करते हैं, तो उनको ना वो बैलेंस पता होता है कि कैसे लोगों को खुश भी किया जाए और कैसे बात को सही तरीके से भी बोला जाए, इंस्टेड ऑफ सेइंग नो एज अ कंपनी आई कैन नॉट गिव यू पार्टी, आप कर ही क्या रहे हो, आप काम तो करते नहीं हो पूरे साल, कंपनी तो लॉस में है, और एक तरफ आप आखिरी में आके पार्टी मांगने लग जाते हो, वर्सेस प्रोबेबली द अप्रोच यू टुक where you made them feel accountable for something which they are asking for, and it's such a beautiful way to put it across. I think wonderful example, sir. I think I personally loved it. उसके बाद जैसे हम लोग लास्ट ईयर प्रॉफिट में गए, तो मेरा फाउंडर्स डे हुआ, तो आई टुक देम आउट। Yes, yes, तो yes. उन्होंने बोला कि जैसे सर देख लो, मैंने कहा देख, इतने पैसों में यहीं आ सकते थे, अभी Right. तो जाना है बहुत ऊपर। तो बोले कि सर गोवा, मैंने कहा इतने वाला टारगेट है, ये वाला कर लेंगे। तो मैंने कहा देखो पूरा पैसा तो नहीं उड़ा सकता ना मैं, प्रॉफिट इतना कमाया पार्टी में। कहने को तो Right. बात सही है। तो मतलब देखो, हर कंपनी में लोगों के कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड दो रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं उन्हीं की, ये सब की सब लोगों की हिडन वो होती है। क्योंकि एक मतलब इमोशनल लोगों का एक थोड़ा सा ये होता है कि दे गिव पीपल टू ओपन अप। Yes. जब लोगों को ओपन अप होने में कोई वो करता है ना, दो चीजें होती हैं, कोई ओपन अप होने के बाद में उसकी प्रॉब्लम को सुन के इग्नोर ना किया जाए। और आप पूरा नहीं कर सकते, बात अलग है, लेकिन Yes. इग्नोर मत करो। So तो ये powerful, sir. वाली बात होती है कि आपने ओपन अप कर लिया लेकिन बाद में सुना नहीं, दैट इज द वर्स्ट थिंग। Yes. 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 एंड मैंने देखा ये वेशनल वालों के साथ बहुत बार होता है। पार्टी में जाएंगे, दारू पियेंगे, उसके बाद बोलेंगे अच्छा तू बताना कुछ अपने बारे में, कुछ बताना। जब बंदा बताना शुरू करेगा तो वो वहां से कट लेंगे। Yes, sir. Yes. दैट्स Yes. द वर्स्ट ट्रेट। Yes. Yes. इसमें होता है कि people open up होने के बाद there are two type of things, something you can handle, do right now, something you can't, Right. which you can't, I mean just say it straight। देखिए यहाँ पे तो तेरे पास में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे आई विल हेल्प यू। Yes. 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 तो मतलब ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हर तरह के, मतलब जो ये टिपिकल सिचुएशन आती है बिजनेस की, इतनी सारी आती है। मतलब सबको पता है इंक्रीमेंट्स होते हैं, हाइक्स होते हैं, ये होते हैं, तो सबको पता है। तो उसके अंदर भी आपके पास हमेशा यही ड्रामा रहता है कि एक्स करना है कि वाई करना है, कि इसका इतना दे दिया उसको, क्योंकि दे आर ऑलवेज कंपैरिजन अवेलेबल। Yes, sir. Yes. Yes. तो वहां पे भी आपको, आप इस चीज को हैंडल करने के लिए, क्योंकि आप इफ यू हैव ए जस्टिफिकेशन ओवर देयर, क्योंकि ह्यूमन को क्या चाहिए होता है कि एक जस्टिफिकेशन चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। Yes. ये होता है कि मेरे को 15 मिला है, इसको 16 मिल गया, या मैं Yes. तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, मुझे भी 15 मिला, उसे भी 15 मिला। Yes. Yes. तो ये टिपिकल यही वाली प्रॉब्लम्स आती हैं कि इसने तो कुछ भी नहीं किया पूरे साल, मैंने तो पूरे साल घिसा है, फिर भी मेरे को आपने 15 दिया, उसको भी आपने इतना दे दिया। Yes. तो ये सब टिपिकल कॉन्वर्सेशन आपके पास है, एंड दिस इज नॉट द कॉन्वर्सेशन व्हिच इज कमिंग टुडे, दिस इज द कॉन्वर्सेशन व्हिच आर लाइक सिंस लास्ट 30 years I'm sure. आई एम फेसिंग दिस कॉन्वर्सेशन। Yes. Yes. एंड Yes. इन कॉन्वर्सेशन का इससे अच्छा कुछ वो नहीं होता है कि इफ people who matters to you or whom you matter, you have a continuous check throughout the year, don't just do that connect towards the end of the year, क्योंकि Makes sense. सबको गंदा लगता है अगर आप बिल्कुल आखिर में जाके बोलते हो कि इस बार तो ये हुआ है। आप उनसे अगर इफ दे रियली मैटर्स टू यू, गो एंड टॉक टू देम ऑन मंथली बेसिस, मंथली नहीं तो क्वार्टरली, उनको थोड़ा थोड़ा सा चीजें बता के देखते हैं पास की परफॉर्मेंस में ये पंगा चल रहा है, Makes थोड़ा sense. सा इसको सही कर ले, अपने बॉस से बात कर इसके बारे में। तो मतलब इट इज समथिंग लाइक कि हम इस वाली प्रॉब्लम को, ह्यूमन प्रॉब्लम को, जो पहले जमाने में जैसे जिसे लाला कंपनी कहते थे, और हम आज अपने आप को कॉर्पोरेट कहते हैं, लेकिन इफ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लाला कंपनी, वहाँ के मुनीम जी, मुंशी जी, कलर 20-20 साल तक एक ही जगह काम करते थे, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें पता था कि आज की डेट में मेरी तनख्वाह कितनी भी हो, मेरे बच्चों की शादी में या मकान में सब कुछ लाला जी करवा देंगे। अगर लाला जी बैठे, मुझे कोई टेंशन की बात ही नहीं। बिल्कुल ये होता भी था।
नहीं होता था सर, मेरी फैमिली में आज भी होता है। मतलब मैं तो उस फैमिली से आता हूँ जहाँ सारे आसपास मेरे बिजनेस करते हैं, मेरे कजन्स, मेरे मेरे अंकल्स। तो आज भी उनके पास 10 साल 15 साल 20 साल पुराने एम्प्लॉयज हैं, दे डू एवरी सिंगल थिंग टू हेल्प देम। तो, सो तो हम जो कहते हैं कि हमारे यहाँ लाला कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ वी आर कॉर्पोरेट, वी आर एमएनसी, वी आर, अरे भैया लाला कल्चर नहीं है तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना। लाला कल्चर इज अ गुड कल्चर। लाला यस कल्चर इज लाइक which keeps you which create a bond। यस सर, यस आप किसी चांदनी चौक की दुकान में चले जाओ, जो बंदा आपको 10 साल पहले मिला था आज भी वही बंदा मिलेगा आपको वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही तो, ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि उसके पास में कुछ आपने, इट इज मोर अबाउट कि भैया जो आप तब भी ही इज बीइंग कंटिन्यूअसली इमोशनली नरिश्ड। मतलब फाइनेंशियली है नहीं है, लेकिन वो इमोशनली नरिश्ड है, उसके पास में पीपल ऑलवेज लुक अप टू यू कि कोई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो रेशनलिज्म में क्या होता है, वो कोई है वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। यस यस यस। एंड सर, बिकॉज आप एक बात बोल रहे हैं, मुझे बस एक पॉइंट हाथ के हाथ आपसे कंफर्म करना है, आपका इसमें बिलीव क्या है कि that an emotionally connected team is more productive than a non-emotionally connected team? इमोशन, जो मैंने कहा था इमोशनली कनेक्टेड से पहले की एक कंडीशन है यार, Hmm. उसमें मतलब जब आप अपनी टीम को कहते हो ना, जो टीम होती है उसमें वो क्राइटेरिया चेक करना कि वेदर दिस टीम इज फिट और नॉट Okay. फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। Sure. Of उसका course. फिटनेस क्राइटेरिया चेक करना। Of course. Of course. मतलब जैसे अगर मैं इसे वैसे समझूं कि मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हूँ अपने, मान लिया वाइफ के साथ भी है, अब उसको Mm-hmm. डायबिटिक है, तो अब मैं Okay. वो बोले कि रसगुल्ला खाने चलते हैं, Okay. तो Okay. अब मैं बोलूँ एज ए टीम है जो इमोशनल, बोले बहुत दिन हो गए खाए हुए, रसगुल्ला खाने चलते हैं, तो पर मुझे पता है शी इज नॉट फिट फॉर रसगुल्ला, Okay. Interesting. Interesting. तो देन आई कांट बी दैट इमोशनली कनेक्ट विद हर ना। Oh, makes sense. Makes sense. तो मुझे उसको फिर वो करना रहेगा ना, तो पहले आपकी जो फिटनेस है टीम की, वो ए पर्टिकुलर जॉब, दैट नीड टू बी इंश्योर्ड। 100%. उसके बाद इमोशन वाला पीस आता है। अगर ये पहले इमोशन आ गया तो फिटनेस आते ही नहीं है, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। No, sir. Interesting. Interesting way of looking at it. I think such a beautiful example to, I think, like talk about this thing. Okay, being emotional is fine, बट अगर आपकी जॉब और आप जिस चीज के लिए वहां हो वही फिटमेंट नहीं हो और आप 100% प्रोडक्टिव नहीं हो, तो शायद इमोशनल कैन बी नेगेटिव रादर देन पॉजिटिव। यस। Yes, 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 yes. I think perfect example, sir. And sir, almost towards the end of the conversation now, matlab, I personally wanted you to cover one more thing. We all know that, okay, world is changing. Now your CV has to be about the tools you know, the technologies you know, and the young generation, we all have seen, I think मैं तो एटलीस्ट देख रहा हूँ ये लास्ट 8-10 साल में जो नए लोग आ रहे हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो खराब है या हम लोग किसी भी तरीके से बेटर है या वो सुपीरियर है, हम लोग सुपीरियर नहीं है, बट मैंने पर्सनली देखा है कि लोग बहुत ज्यादा रैशनली ही सोचने लग गए हैं बहुत चीजों को लेकर, एंड नो वन रियली आर वेरी डीपली कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जो आजकल की न्यू जनरेशन है, जो अब आज की डेट में अपना करियर स्टार्ट कर रही है या जिनको 2 से 4 साल हो गए हैं, व्हाट वुड बी योर टिप फ्रॉम अ लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू कि आप आज की डेट में उस किसी को हायरिंग करते हुए, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि आज आपको अपनी टीम में एक हायर करना है, एक असिस्टेंट मैनेजर पर्सन हु इज नीदर टू सीनियर नॉर टू जूनियर, probably someone who is somewhere around 3-4 years experience and about 25-year old. What are some of the traits you will like to have in that person? And उसको शायद आप कहोगे नहीं, बट आप जब उसको हायर करोगे तो आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करोगे while talking to that person. देख, इंटरव्यू के मामले में तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इनफेमस, Okay, okay. वेरी इनफेमस, बिकॉज मैक्स लाइफ में आई डोंट थिंक तेरे सामने है बबनीत सिंह मोगा, सरदार जी बबनीत, I remember. इफ ही वाज देयर। सो जब कोई इंटरव्यू के लिए आता था तो आई यूजुअली सिट एट वन कॉर्नर ऑफ ओपन ऑफिस था हमारा, हम्म, 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 हम्म।
मेरा ये था कि मतलब हम किसी से पूछना उस टाइम पे फाइनेंस वालों से, जिस टाइम से वो बंदा वहां से चलते हुए मेन गेट से चलते हुए मेरे पास तक आता था, उस बीच में डिसाइड हो जाता था कि बंदा हायर होना है या नहीं होना है। ओके, इंटरेस्टिंग क्योंकि इंटरेस्टिंग। द वे ही वाज मूविंग, द वे ही वाज लुकिंग एट द थिंग्स, द वे ही वाज बिहेविंग, द वे, सो दोज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स कि वहीं पे आपके पास में what type of body language है, what type of eye interaction I am having, or he is having with people. तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास में तो आज की डेट में भी यही वाला सीन है कि मतलब व्हेन आई हायर समबडी, I normally, if I am hiring a assistant manager, I will not definitely go for a technical round. That must have been done at some level, and so technically I will not assess him or her. But yeah, I will do more of interaction related to that, how he is in between his friends, where Okay, usually they go for uh, weekends, okay, okay, and whether he is a beer person or any other alcoholic person. okay, okay, okay. And so for me, see, there are two type of role. एक बंदा जो सोशलाइजिंग नहीं कर रहा है, सपोज ये सब पूछने का ऑब्जेक्टिव ये होता है, एक बंदा सोशलाइजिंग जो नहीं कर रहा बहुत ज्यादा, या ही इज नॉट इनटू, ही डोंट प्रेफर टू बी, तो अगर मेरा रोल है टीम हैंडल करने वाला तो मैं उसे कभी नहीं लूंगा, Okay, बिकॉज ही इज एन इंडिविजुअलिस्टिक परफॉर्मर। okay, okay, okay. तो वो बेसिकली कोई भी जो एक आपके पास में इंडिविजुअल प्रोफाइल होगा, तो उसके लिए मैं शायद इस टाइप के बंदे को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर कोई टीम मैनेज करने वाला होगा तो मैं उसको उस टाइप का रोल दूंगा जो पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा फ्रेंडली होना जानता हो। Okay, makes sense. लेकिन अगर मेरे पास में कोई बहुत ही ज्यादा कोई टेक्निकल रोल होगा, तो दैट टेक्निकल रोल के लिए, और जो कि इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड होगा, जैसे हमारे यहाँ सेल्स में प्रोफाइल थे, सपोज इफ योर टाइप ऑफ प्रोफाइल, आई विल डेफिनेटली भी कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो थोड़ा सा सोशलाइज करने वाला है, उसी को ये वाले रोल देंगे। जो सोशलाइज करने वाला नहीं है उसको मैं सेल्स वाले रोल में नहीं डालूंगा, Makes sense. Makes उसको sense. मैं थोड़ा सा इस वाले रोल में डालूंगा, जो कि आपके पास स्ट्रेटेजी वाला रोल होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो आफ्टर ऑफिस लाइफ होती है या ऑफिस के अलावा जो लाइफ होती है, बेसिस दैट आपकी जो चीजें हैं उसके बाद में, देन यू केम, मतलब तो इसीलिए जो इट ऑल डिपेंड दैट की जो एज यू सेड की असिस्टेंट मैनेजर, बट असिस्टेंट मैनेजर व्हाट टाइप ऑफ रोल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। राइट। एंड एक दूसरा जो होता है कि देखो, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं पूछने को आते हैं कि 5 साल बाद क्या करेगा या 4 साल बाद क्या करेगा या 1 साल बाद क्या होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट टाइप ऑफ फिलोसफी। राइट सर। आई एम द गाय ऑफ लिविंग टुडे। राइट। तो मेरे को जो ज्यादा ये लगता है कि भाई, हमेशा से एक क्वेश्चन आया है कि पहले ऑफिस में व्हाट आर द गुड थिंग्स यू हैव डन, जो तूने अच्छी चीजें की हैं, व्हाट आर द अचीवमेंट्स, व्हाट आर द गुड थिंग्स, एंड क्या थोड़ी सी आपके पास में कमी रह गई। मेक सेंस। एंड दोस टू क्वेश्चंस डिफाइन द पर्सन, कि या। वो अपनी इन अचीवमेंट को अचीवमेंट काउंट करता है। बहुत से बंदे जवाब देंगे, नहीं मैं इस क्वार्टर का एम्प्लॉय ऑफ द रहा था क्वार्टर, तो ये मेरी अचीवमेंट है। तो मेरे दिमाग में बंदे की मतलब वही रेपुटेशन जो है बहुत डाउन हो जाती है। ओके ओके। तो अगर कोई कहता है कि मेरी जो वीकनेस है ये है कि आई एम टू इमोशनल एज ए वीकनेस, तो वो भी कोई मेरे पास में, तो मेरे को क्या होता है कि अचीवमेंट मतलब कि मैं किसको अपनी अचीवमेंट बोल रहा हूँ। यस। क्या क्वार्टर ऑफ द एम्प्लॉय होना मेरी अचीवमेंट का एक पार्ट था, या मैं अचीव करना चाहता था कि बस मैं इस कंपनी में क्वार्टर ऑफ द एम्प्लॉय बन जाऊँ। राइट राइट राइट। तो मैं कभी नहीं चाहता था। ओके ओके ओके। मतलब अगर मैं आज, अगर निपुण मेरे को इंटरव्यू देने आएगा, मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, पिकर की क्या एक अचीवमेंट थी, और अगर निपुण मेरे को बोले कि आई गोट 2 promotions इन ए पीरियड ऑफ 1 year, दैट वाज माय अचीवमेंट। वो अगर निपुण बोले कि इस प्रोसेस में मैंने पहले ये था, जो सेल थी, इससे लेके हम लोग यहाँ तक ले गए इसको, एंड वहां पे जाके हमने भी टीम भी बढ़ाई, ये भी बढ़ाया, तो विच निपुण यू विल सेलेक्ट।
I get it. I get it. And of course, the second one, which has the impact alongside. Impact, and वो impact लाने में whether he was an individual or whether it was the team, Right. Right. it was what type of decision, whether he, तो वो आपके पास इस एक क्वेश्चन से मतलब मेरा नॉर्मली हो जाता है. Makes sense. Makes sense. And sir, इसी आंसर के अंदर मतलब just to complete this, ये कितना मैटर करता है कि ये कितना सीनियर रोल होता जा रहा है इवेंचुअली, आपको लगता है फिलॉसफी सेम रहती है, या अगर आपको ज्यादा सीनियर रोल में हायरिंग करनी है, लेट्स से आपको ऐसा बंदा चाहिए जिसको हायर करने या ना करने से आपकी कंपनी का एक बहुत मेजर डिसीजन इधर से उधर हो सकता है, तो हाउ विल यू चेंज योर वेज ऑफ थिंकिंग और परसीविंग दैट पर्सन? देखो मेरे पास में नॉर्मली ये सभी में रहता है, थोड़ा सा बस अगर तुम ज्यादा सीनियर हो जाते हो तो वहां पे केवल ये रहता है कि whether the conversation is more open ended or close ended. ओके. तो अगर कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा क्लोज एंडेड होता है तो मतलब हल्का समय को हो सकता है, लेकिन अगर वो ओपन एंडेड रहता है कि आपके पास यू आर आस्किंग, मतलब अगर कोई आगे पूछे कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो उससे अभी तो नहीं है, इससे बेहतर है कोई ये पूछे कि हाउ इज द कंपनी परफॉर्मेंस या कंपनी का क्या ये चल रहा है, तो वो एक ओपन एंडेड है कि मतलब दे वांट टू नो. एक होता है वो रिपोर्टर की तरह से यस नो वाला, तो जो है वो क्लोज एंडेड है, तो दैट कॉन्वर्सेशन एट सीनियर लेवल आई पर्सनली डोंट प्रेफर. मेक सेंस. तो वहां पर वो तो पर मोटा मोटी रहता सब में सेम है कि आपके पास में वहां पे भी ये होता है कि अगर सीनियर लेवल पे, क्योंकि सीनियर लेवल पे अगर एज यू आर सेइंग कि अगर सपोज मैं किसी सीएक्सओ को हायर कर रहा हूँ, यस, तो सीएक्सओ को हायर करने में अब ये ये भी है. कि I'm आप sure आपने वो इंटरव्यूज लिए हुए भी हैं. आई एम श्योर आप पिकर में भी उस रोल पे थे, आप हेल्थ कार्ड में भी उस रोल में थे जहाँ पे आपने सीएक्सओ तक को हायर किया हुआ है. काफी यहाँ पे भी किया है, तो मतलब तो सीएक्सओ को हायर करने में भी आपके पास में क्या होता है कि आप ऑलरेडी देख चुके हो कि बंदे ने क्या क्या अचीव किया है, कहाँ कहाँ अचीव किया है, तभी आपने उसको बुलाया है. बट एट द सेम टाइम आपको अगर उसको और एसेस करना है तो ये है कि द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच पीपल आर आस्किंग नॉर्मली those are being judged on the basis of question, not on the basis of answer. राइट. कि उनके क्वेश्चंस कैसे होंगे, that defines them. आंसर तो सबकी सेम होते हैं यार. आंसर है मतलब यू विल फाइंड ऑलवेज लाइक, क्योंकि वही वाली बात है ना, एआई आपको क्वेश्चन पूछना नहीं सिखा सकता, आंसर देना सिखा सकता है. वेरी इंटरेस्टिंग. तो वो लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी, क्योंकि आपको एआई या एलेक्सा आपकी या गूगल आपको जवाब तो क्वेश्चन का ही देगा, अगर आपने उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जवाब क्या देगा वो अपने आप से अपने आप. बिल्कुल सर, बिल्कुल. एंड दैट्स वेयर आई फील सर, मतलब स्मार्टनेस, ये टूल्स हमारे को इनेबल कर सकते हैं, ये टूल्स हमारे को ऑफ कोर्स कुछ सोचने के तरीके बेटर तरीके से सिखा सकते हैं, या हमारे को कई बार कुछ सही भी गाइड कर सकते हैं, बट ऑफ ये कोर्स सोचना तो आपको पड़ेगा. स्मार्ट इनफ. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मुझे आज भी कोई बंदा वो ज्यादा स्मार्ट लगता है जिसके सामने मैं ऐसे बोलता हूँ कि यार ये लास्ट मंथ के नंबर्स 1000 था, इस मंथ का नंबर 1450 हो गया है, सो और इस अगले महीने का नंबर 1700 हो गया है, यार ये परसेंटेज ना 20 या 22% से ग्रो कर रही है. तो जो बंदा प्रोबेबली मेरे से बिना कुछ चेक करे कैलकुलेटर या जेन एआई टूल या चैट जीपीटी से बिना पूछे इनके आंसर्स क्विकली दे पाता है, तो आई एम ऑलवेज मोर इम्प्रेस विद दोस पीपल, क्योंकि मुझे पता है वो हर जगह इसको घुसा नहीं रहे हैं. दे आर स्मार्ट एंड दे नो व्हेन टू यूज दिस टेक्नोलॉजी प्रोबेबली टू साउंड मोर स्मार्टर, बट इट्स नॉट लाइक दैट्स देयर बाय डिफॉल्ट. अगर कोई बंदा 1000 में 1200 में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो 20% कैलकुलेट करने के लिए भी कैलकुलेटर या चैट जीपीटी यूज करेगा ना, तो देन आई थिंक फॉर मी दैट स्मार्टनेस कंप्लीटली ब्रेक्स राइट देयर. वो तो देखो एक बेसिक चीज है कि आपके पास में जब ये होता है कि जो क्वेश्चन के ऐसे वाले आंसर्स होते हैं, उसको तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपके की वाइटल्स होते हैं, राइट. जैसे आप अगर अपने की वाइटल्स का ध्यान रखते हो ना कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, अगर कोई पूछता है तेरी हाइट कितनी है तो यू डोंट गो एंड मेजर योरसेल्फ, यस. या कोई अगर पूछता है आपका वेट कितना चल रहा है तो यू डोंट गो इमीडिएटली टू वेइंग स्केल, यस. या आपका कलर क्या है, तो आपके बॉडी वाइटल जैसे आपको पता होता है, ऐसी जो आप
काम कर रहे हो, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, उस काम के भी जो वाइटल्स होते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि अक्टूबर में या पिछले महीने तेरी सेल कितनी हुई थी एंड समबडी हैव टू लुक एट द एक्सेल शीट, तो मतलब वो खत्म है, जिसे अपने वाइटल्स ही नहीं पता, तो उस बंदे के साथ में तो बेसिकली तो बिजनेस, मैं इसको ये भी नहीं कहता कि तेरे पास यू आर नॉट अपडेटेड, मेरा उसका ये होता है कि एंड ऑफ लेटली दैट्स व्हाई बिना लैपटॉप के मीटिंग में आना, आई स्टार्टेड वंस इन पिकर आल्सो, एंड यहाँ पे भी एक बार चालू किया था मैंने कि भैया तू सिंपल, इफ यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स डे इन डे आउट, तो देन अब कितने कस्टमर आपके पास में एक्टिव हैं, तो अगर आप वास्तव में उन कस्टमर से कनेक्ट कर रहे हो, इफ यू आर इनटू सेल्स, यू मस्ट बी नोइंग Yes, 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 yes. या कितना इस बार एट्रिशन हुआ है या कितना रिटेंशन, कितना तुमने ये, तो उसके अंदर इफ समबडी इज गोइंग एंड इट इज, अगर मेरे पास में इफ आई एम आस्किंग फ्रॉम अ सीडीओ दिस क्वेश्चन, तो देन मे बी ही कैन से कि ठीक है अप्रोक्स इतना है लेकिन एग्जैक्ट बता दूंगा, लेकिन अगर मैं किसी एक असिस्टेंट मैनेजर से पूछ रहा हूँ जिसकी टीम ये हैंडल करती है डायरेक्टली, एंड ही सेड ओके सर मैं अभी आपको 10 मिनट में बताता हूँ, देखते हैं। Right. You might not be impressed, huh? Yes, yes, ये yes. तो एक बेसिक है कि आपके पास में ये तो बिजनेस वाइटल्स अपने जो हैं ये सब बंदों को, Right, और ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अगर कोई डील करता है डेली यूएस से किसी उसमें, वो बोलूँ मैं उसको बोलूँ कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है, इस रेट की मैं चेक करके बताता हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है यार कल तो 19.40 था, आज का मैंने अभी चेक नहीं किया, शाम को चेक करूंगा, तो But फाइन। still, right, right. लेकिन वो बोले कि डॉलर का यहाँ भी चेक करता हूँ, No, I understand. I understand. तो ये तो मतलब बेसिक है, इसको तो मैं कहीं अ, उसमें भी काउंट नहीं करता हूँ कि अपने पास में से No, बिल्कुल बिल्कुल। कि ये तो वाइटल्स हैं। नहीं नहीं, वेरी अगेन अगेन सर, मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि कई बार ना कुछ चीजें बहुत इजी हैं एंड हम लोगों ने उनको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बट अगर आप उनको बहुत आसान तरीके से देखो तो वो इतना ही आसान है जैसे अभी आपने इस आंसर को दिया है कि आपको अपने बेसिक्स तो पता होने ही होने चाहिए। और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है और आप सोचो कि बेसिक्स भी टेक्नोलॉजी बनने वाला है आपका, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल मेक यू सर्वाइव इन दिस एंटायर वर्ल्ड। हो सकता है आपको एक मौका मिल जाए, आपको हो सकता है गलती से एक जगह पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पे आप उसको पोर्ट्रे करके हासिल कर लो, लेकिन इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म, देन योर बेसिक्स हैव टू बी एट द राइट प्लेस। So sir, almost brings me to the end of the conversation. मैं बस आपसे आखिरी में बस ये पूछना चाहता हूँ कि anything, a one liner or a two liner or whatever you wish, like uh, any end statement or any suggestion or anything you would like to tell to the people that okay, how they should live their life, and it can be someone who's just starting a career, it can be a person जो already अपने mid career में है, it can be someone let's say like me who is there but now he wants to go and take and go to the level up। तो उस किसी भी तरीके के इंसान को as a person who has seen this all, who has spent 30 years in his life leading people and telling everyone what is right, what is wrong, any suggestions you would like to give, and any suggestions for me also or anything you want to talk about? देखो इसमें सजेशन तो नहीं, मैं एक लाइन जो मैं मतलब हमेशा मतलब दैट इवन टू माय सन आई से दैट, एंड मैं जो मैं अपना फंड आया है वो एक है कि नेवर क्विट व्हाट यू हैव स्टार्टेड, Yes. आई मीन कीप गोइंग। सो बहुत एज यू कि बहुत से कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होते हैं बट बहुत पावरफुल होता है, तो ये उनमें से लगता है मेरे को, नेवर क्विट। Yes. एंड honestly Nipun, I was having a discussion with my son yesterday, बहुत कैंडिड सा हमारा डिस्कशन हुआ था, एज आई सेड कि आई वाज ऑन द लंच व्हेन वी वर सपोज्ड टू हैव टू ओवर ए बियर, तो Oh, डिस्कशन हो रहा था कि he asked me a very valid question that you are saying never quit, but what if terms changes in between, yes. even then you don't quit? Oh, so my stance over there that if the terms changes, because first of all we are not living in a very technological environment जहाँ पे कि एक हर एक स्टेप डिफाइन होता है,
Right. अगर मैं गाड़ी भी लेके चलता हूँ तो मुझे पता है कि whatever I know, जितनी भी इंटेलिजेंस गूगल दे दे, लेकिन मुझे पता है वहाँ रेड लाइट होगी, वहाँ पे होगी, तो मैं एक अपनी टॉलरेंस लिमिट लेके चलता हूँ कि देयर सर्टेन टर्म्स विल चेंज. Right. Right. तो आई शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी while I am thinking about my terms, which you say terms. Yes. और अगर कोई टर्म्स ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल ही दिस और दैट वाली 0 और 1 वाली टर्म्स होती हैं, कीप दैट इन राइटिंग. क्योंकि अगर वो वाली टर्म्स चेंज हो जाती है कि आपके पास में से, बट अगर वो वाली टर्म जो आपने राइटिंग में नहीं है, उसके बाद आप बोलते हो नहीं यार, पहले तो हमारे पास में 5 बंदे थे, अब 4 बंदे रह गए. पहले तो हमारे पास में ये ऑफिस के अंदर इतना डिस्टेंस था, अभी तो ये ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा होने लगा. अब ऑफिस 10 बजे आने का था सर, पहले 10 बजे का था, अभी ऑफिस चेंज हो गया, अभी तो फालतू टाइम लगेगा ही लगेगा. तो टर्म्स कीप ऑन चेंजिंग. Right. सो यू आर, आई मीन यू आर नॉट ए रोबोट कि तुम्हारे अंदर आके मुझे सिस्टम चेंज करना पड़ेगा. चेंज योर माइंड. क्विट करने के लिए दिस इज नॉट ए सिंपल एक्सक्यूज कि थोड़ी सी टर्म चेंज हो गई थी. Right. I think for quit as well as to complain, if I'm not wrong, मतलब देखो, कंप्लेन करना यही होता है कि क्योंकि इफ यू डोंट वांट टू कंप्लीट देन यू विल कंप्लेन एंड यू विल क्विट. yeah. क्योंकि कंप्लेन आदमी किस लिए करता है? इफ यू आर जस्ट कंप्लेनिंग एंड नॉट क्विटिंग, Right. तो वो तो वैसे ही अपना बीच में थोड़ा बहुत ग्रीवेंस आती है, करते हैं. Right. बट इफ कंप्लेन इज गोइंग टू दैट लेवल कि सर इसमें तो ये सबका सब चेंज हो गया एंड देन यू हैव टू चेंज द प्रोजेक्ट, तो वहां पर तो मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल फंडा एंड यू ऑलवेज, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेवर क्विट वाला जो था कि आपके पास में कीप गोइंग, तो ये था कि जैसे यू कैन से एज यू स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम योर बिजनेस पर्सपेक्टिव, आई सेड के ठीक है इसको लॉसेस को बंद कर दे. तो उस टाइम पर भी ये था कि नेवर क्विट व्हाट यू हैव स्टार्टेड, यू हैव ए पैशन, यू हैव समथिंग टू डू, Right. तो डोंट क्विट इट. लॉस कट कर ले. तो आपके पास क्योंकि टर्म्स हैड चेंज्ड कि Right. बिफोर कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड, बिकॉज टर्म्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली, तो अब कंप्लीट चेंज हो गई है, तो वहां पे से आपके पास में मुझे चलते भी रहना है. तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिस्ट्रक्चर माई सेल्फ. Yes. एंड वो रिस्ट्रक्चर इस हिसाब से करूंगा क्योंकि उस टाइम का ये कॉन्वर्सेशन था कि व्हेन आई सेड दैट ओके इफ यू रिक्वायर आई कैन फंड इट फॉर सम टाइम if you have some business model. Yes. So that's where I am coming again. And but if you are not doing it, then immediately come to our office. I will connect you. You start doing this. Yes. So it's like you don't quit what you have started. If terms changes Right. completely, then restructure it, but it's still going on. Wonderful, sir. Wonderful. I think so. The small way. I think small belief, but still so strong. तो सर मतलब I know मैं वैसे फंबल नहीं करता अपनी लाइफ में, बट आई थिंक दीज आर फ्यू मोमेंट्स जहाँ पे मैं काफी स्पीचलेस हो जाता हूँ, बिकॉज you have been one of those people in my life who have played such a important role. Whatever I am today, I will again reiterate that statement on this call and on this session that okay, Nippon 2.0 is here just because of that one small chance what you gave me in 2021. And मैं बिल्कुल वही सब करना चाहता हूँ जो आपने शायद कभी मेरी लाइफ में प्ले किया है रोल, काफी सारे और लोगों के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है वो कितना पावरफुल है. आप मैं लिटरली जब मैं अपना ह्यूमन स्कूल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस का पेज ही बना रहा था, तो मुझे लगा व्हाट इज दैट वन कोट जो सबसे ज्यादा मैं रेजोनेट करता हूँ. तो यही था कि पीपल विल फॉरगेट आपने क्या बोला, पीपल विल फॉरगेट आपने क्या किया, बट पीपल विल नॉट फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील. एंड I personally feel that okay, how you have played so many important things in my life will stay with me and I will personally remember. And अभी मुझे लगता है मैं थोड़ा सक्सेसफुल हुआ हूँ, शायद आगे भी कितना भी सक्सेसफुल होता हो जाऊंगा, but I will always remember this. And then that's what I am trying to build with School of Human Intelligence.
I really want to tell people that okay, beyond anything else, हम human कैसे act करते हैं, हम लोगों की life में क्या changes ला सकते हैं और लाते हैं, किस तरीके से kindness really matter, किस तरीके से emotional question really matter, and then I hope I'm success with everything I want to do with this venture. So thank you so Sure. much for your time. I'm so happy. I'm so happy that I started with this with very first session with you. And I hope tomorrow, if I make it big, we will again have a discussion probably after 3 years or 5 years, and we'll remember this day when we first talked about this. Absolutely. Absolutely. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. I'm forever thankful to everything you have done for me. Thank you so much for being my mentor and so much for being an amazing human to not just me, but hundreds and thousands of people who have worked with you and who currently work with you. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Sure. And then this brings me to the end of first session. I will come back with more and more sessions and more topics to prove again and again that how human intelligence is as powerful as any other intelligence in the world, and edge beyond AI will be human intelligence. I will see you all. Sure. Thank you so much. Thank you. Chalo. See you. Bye.